Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. We have studied so many grammars. We were making so many sentences. We have done when the work is going on in present and when the work is included in our daily routine. And when work is going on, and when the work has finished in present, that type of sentences we have also studied, and we are in a position to make that type of sentences. Okay, and after that we jumped into the past. In past we studied that when the work was included in our daily routine in past, but not now. That type of sentences we have also studied. And after that, when the work was going on in past, that type of sentences also we have studied, and we are making that type of sentences. And after that, when the work had finished in past, when I saw at that time in past, then that work had finished. At that time, after that, we entered into the future. When we will plan. Now we are in present, and in present we can plan our future. We plan our future, then means we will do this, we will do this, and we will go there. No, these are our future plannings. These type of sentences we have also studied. And after that, the work will be going on in future. Work will be going on in future. That type of sentences we have also studied. And some vocabularies we have also learned, like vegetables name, fruits name in recent classes. And before that, we have studied parts of body, external parts of body and internal parts of body that we cannot see, but their functions for our body. And now we need to practice all those grammars that we have studied already. And we need to learn new grammars because we have studied little bit, and too much grammars are remaining till now, and so many vocabularies we have to learn. Then today I am taking a class of vocabulary. We are taking a class of vocabulary, and now today we will learn name of animals. Name of animals. नेम ऑफ एनिमल्स इन हिंदी जानवरों के नाम. जानवरों के नाम. We have taken almost near about 40 or 42 classes, and we have learned so many grammars, and we need to practice all about them. Okay, if we will be speaking in Hindi, then we will be never ever able to be speak in English. Okay. Name of animals. Animals can be categorized in so many types, like pet animals, wild animals, and marine animals. Animals will be divided in 3 categories. First, pet animals. Second, आपका wild animals. And third one, marine. Means पालतू. फालतू नहीं, पालतू. पालतू. जंगली. In English grammar and speaking class, speaking means practice is must. Practice is very important. Marine, जलीय. So many animals we keep in our house. We don't domesticate it. यानी कि हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, घर में रखते हैं अपने, ठीक है, शौक से. और दूसरे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आपके जंगलों में रहते हैं, जो हमारे घरों में नहीं रहते, फिलहाल जंगलों में रहते हैं. और तीसरा हमारा कुछ पानी के अंदर रहते हैं, समंदर में, नदियों में ना, वो आपके मैरीन होते हैं.
तो 3 कैटेगरीज हैं आपके जानवरों के, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पेट को देखते हैं। पेट, यानी कि घर में जो हम पालते हैं ऐसे जानवरों को हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले क्या है? डॉग, कुत्ता, कुत्ता। देखिए एक टाइम था जब गाय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, भैंस को, बकरी को, लेकिन टाइम ऐसा बदल रहा है ना कि जिस चीज की इंपॉर्टेंस कम थी उसकी बढ़ती जा रही है, जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी उसकी कम होती जा रही है। गाय भैंस लोग कम पाल रहे हैं, कुत्ता ज्यादा पाल रहे हैं, और कुत्ते को अपने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार मिल रहा है आजकल। बेडरूम में सोना, उनके लिए अलग से जो है झूले वगैरह, और घर में हर जगह उनका आना जाना। बच्चों को तो मना किया जाता है उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, कुत्ते को कभी नहीं मना किया जाता, ठीक है। तो कुत्ते की इज्जत आजकल बहुत हो रही है। डॉग, दूसरा आपका कैट, बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। तीसरा आपका काऊ, गाय। रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसका, गाय को माता माना गया है हिंदू धर्म में, तो इसलिए थोड़ा सा लोग उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। बाकी नेताओं के बहुत काम आती है गाय। लड़ाने के गाय नहीं लड़ाते हैं, पर गाय के नाम पे इंसान लड़ाए जाते हैं। काऊ, ऑक्स, बैल। पांचवा आपका बुल, बुल। काऊ पे हम लोगों ने बहुत ऐसे लिखा होगा बचपन में, क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ तक लोग जो है। अब तो फिलहाल जो चीजें बड़े क्लास में हम लोगों ने किया वो आपके छोटे बच्चों को और पहले की क्लासेस में कराई जाती हैं। तो गाय के हिंदी में निबंध और इंग्लिश में ऐसे बहुत अच्छे से याद होता है सबको। बुल, सांड। हॉर्स, कभी कभी कुछ चीजें जब रटाई जाती हैं, वो जब किसी को कोई चीज लिख करके दे दीजिए बिना दिमाग चलाए हुए, वो जो है उसको सिर्फ मेमोराइज करने की कोशिश करता है तो वो चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कभी कभी अगर किसी को बकरी और गाय का दोनों का निबंध लिख करके एक साथ छोटे बच्चे को दे दीजिए याद करने के लिए, तो दोनों याद करता है वो। बस कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है ना कि गाय की 2 टांगे कर देता है और बकरी की 4। वो गाय की चीजें बकरी में आ जाती है, बकरी की चीजें गाय में आ जाती है। गाय वो दूसरे तरीके से लैट्रिन करती है और बकरी जो है वो गोबर करने लग जाती है, चीजें मिक्स हो जाती है इधर उधर। इसलिए जब भी कोई चीज बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसको समझा दिया जाना चाहिए, उसको दिखा करके उस चीज को समझा दे कि ये चीज ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है। बिना दिखाए से खाली जो है बच्चों का, किसी का भी, बच्चों का या बड़ों का दिमाग जो है पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा चलता है। पिक्चर अगर आ गई ना तो वो चीजें दिमाग में ज्यादा अच्छे से सेव होती है, बल्कि कोई लेटर वगैरह कोई अच्छा लिखा होता है वो उतना जल्दी सेव नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज समझाना हो, बताना हो, पढ़ाना हो, याद करवाना हो तो उसको दिखा करके, समझा करके तब याद करवाया जाए, ज्यादा बेहतर होता है। हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा। 7, पोनी, पोनी में भी घोड़ा होता है। देखिए, और आप ये भी यहाँ सोचने वाली बात है कि हॉर्स मीन्स भी घोड़ा और पोनी मीन्स भी घोड़ा। तो अगर एक चीज जब पहले से घोड़े की अंग्रेजी हॉर्स मौजूद थी तो पोनी को क्यों लाया गया? फिर सवाल खड़ा होता है ना कि अगर हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है तो पोनी को क्यों लाया गया?
जब एक चीज मौजूद है जो हर काम कर ले रही है, तो दूसरा उसका अल्टरनेटिव क्यों लाया गया है? अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं होता कि जो है हू बहू। अल्टरनेटिव का मतलब होता है उसके जैसा, यानी कि उसको हटा करके उससे बेहतर या उससे कुछ कम ज्यादा। ठीक है, एकदम वही चीज अगर मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, और मेरा नाम अब्दुल मुबीन है, तो दूसरा अब्दुल मुबीन एकदम हूबहू उसी क्वालिटी की, उसी खूबी की, उसी रंग रूप का, उसी कपड़े का, उसी चेहरे का बनाने को ऊपर वाले की कोई जरूरत है ही नहीं है ना। तो अगर कोई चीज बनाई गई होगी उसकी कुछ वजह होगी। ठीक है, अगर हॉर्स घोड़े की अंग्रेजी है तो पोनी घोड़े की अंग्रेजी है, दोनों एक चीज नहीं हो सकते कभी भी, कभी एक चीज नहीं हो सकती। इसकी कई जात होती है, कई जातियां प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक प्रजाति को हॉर्स बोलते हैं, दूसरे को पोनी बोलते हैं, और तीसरा आपका म्यूल होता है, म्यूल, MULE। देखने में यह भी घोड़े के जैसा ही होता है, लेकिन इसको बोलते हैं खच्चर, खच्चर। और आपका डंकी, 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 गधा। गधा जानवर भले काम ना आता हो, पर ये शब्द बहुत काम आता है इंसानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जब कोई गलती करता है, उल्टी सीधी हरकत किसी की दिखती है, तो बोला क्या जाता है? गधे हो क्या? बोला जाता है ना, गधे हो क्या। जिस तरीके से गाय का इस्तेमाल गाय को लड़ाने में नहीं, इंसान को लड़ाने में किया जाता है, उसी तरीके से गधा जानवर का इस्तेमाल कम करके उसके नाम का इस्तेमाल इंसानों के लिए ज्यादा किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है ये हॉर्स है, हॉर्स की क्या खूबी होती है? ये एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब कि बहुत ज्यादा काम करता है। काम करने का मतलब कि ज्यादा बड़े काम, मेहनत वाला काम ये कर पाता है, और ये थक जल्दी जाता है। मेहनत का काम करेगा, मेहनत जल्दी, आप जाहिर सी बात है अगर आप जितना तेज दौड़ेंगे उतना जल्दी थकेंगे, है ना। और अगर थकना जल्दी होता है इसका, थकना। और गधा जो होता है ये कम मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा मेहनत, जल्दी थकना, जल्दी थकना। कम मेहनत, कम मेहनत का मतलब कि स्पीड, मेहनत का कम मेहनत या ज्यादा मेहनत का मतलब यहाँ पर स्पीड है, यानी कि तेजी से जल्दी जल्दी काम करना और आराम से काम करना, ये है। कम मेहनत करना, देर देर तक कर, देर में थकना, देर में थकना। ये क्या करता है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है रेस वगैरह में, और जल्दी थक जाता है। और ये क्या करता है घोड़ा, ये गधा, गधा क्या काम करता है? वजन लाद करके धीरे धीरे चलता रहता है, और बहुत दूर तक, जितना दूर आप चाहे अपनी जरूरत के मुताबिक बहुत दूर तक इसको आप ले जा सकते हैं। तो देर में थकना। आप देखिए हम इंसान हैं, ठीक है, दिमाग ऊपर वाले ने दिया हुआ है, गधे के पास तो नहीं है। यानी कि कोई बिना दिमाग वाला काम ऐसा कुछ करते हैं, बेवकूफी करते हैं, तभी तो हमें गधा बोला जाता है। ठीक है, अब जो है हम इंसानों ने जो है दिमाग लगाया कि इसका जो है देर तक काम करना और इसका ज्यादा काम करना, अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो हमको ज्यादा काम करना भी मिल जाए और देर में थकने वाला मिल जाए कोई। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को मिलाया, घोड़ी और गधा, इन दोनों के मिलने से जो अगला जानवर पैदा हुआ, घोड़ी और गधा, इनके मिलने से जो अगला जो जानवर पैदा हुआ उसी को हमने क्या बोल दिया? खच्चर। अब इसकी क्या खूबी है कि काम, इस मेहनत, इससे ज्यादा मेहनत करेगा, यानी कि इससे ज्यादा बोझा ये ढो सकता है, इससे ज्यादा मेहनत कर सकता है, और इससे ज्यादा देर में थकेगा, ज्यादा देर में थकेगा और ज्यादा मेहनत करेगा। बीच वाली चीज है, इसकी अच्छाई और इसकी अच्छाई दोनों को मिला दिया, इसकी कमी को हमने हटा दिया, इसकी कमी को हमने हटा दिया। ठीक है, बीच वाला जो काम हमें मिला वो हमने इसको दे दिया। यानी अब ये क्या करता है? घोड़ा गाड़ी जो होती है, बग्घी वगैरह जो बोलते हैं, तो उसमें खींचने के काम आता है। ये वजन उस पर ज्यादा लोड ला दिया जाता है और दूर तक, ज्यादा देर तक ये काम कर लेता है। खच्चर है।
बफलो, भैंस, भैंस, ठीक है। गोट, बकरी, गोट मीन्स बकरी। अब बकरी का मतलब सिर्फ बकरी ठीक है, लेकिन अगर बकरा बोला जाए तो, बकरा बोला जाए तो क्या बोलेंगे उसको? बकरा और बकरी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग अंग्रेजी नहीं है, गोट ही है। अब इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, ही मीन्स आदमी होता है और शी मीन्स होता है औरत, शी मीन्स औरत। तो ही गोट मीन्स बकरा हो जाता है और शी गोट मीन्स बकरी हो जाती है। अगर जनरल बताया जाए तो आपका गोट हो जाएगा। जिस तरीके से टीचर, ठीक है, टीचर और डॉक्टर, अब लड़की वो लेडी भी हो सकती है और मर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्पेशली बताना होगा कि जो है वो डॉक्टर थी, डॉक्टर थी, तो हम वहां क्या बोलेंगे, लेडी डॉक्टर, ठीक है। उस तरीके से बकरा और बकरी जो होता है, ही गोट और शी गोट, इस तरीके से बोला जाता है। लैम, लैम मीन्स होता है मेमना, मेमना, मेमना क्या होता है, बकरी या फिर जो है भेड़ का छोटा बच्चा, ये भेड़ क्या बोलते हैं, शीप, शीप मीन्स भेड़। रैम होता है RAM, रैम, रैम मीन्स भी भेड़ होता है, भेड़ या भेड़ा, भेड़ा। काफ, काफ मीन्स बछड़ा, बछड़ा क्या होता है, गाय का बच्चा, बछड़ा। रैट, चूहा, रैबिट, रैबिट खरगोश, माउस, चूहा, कैमल, कैमल मीन्स होता है ऊंट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान यानी कि जो बालू, जिस इलाके में बालू होती है वहां पर क्या होता है कि गाड़ी वगैरह, कार या बाइक ले जाएंगे आप तो फंस जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और आदमी भी चलता है उसके भी पैर फंसते हैं, बालू वगैरह होती है तो। लेकिन ये जो ऊंट होते हैं इनके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये पैर रखते रखते अपना आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज और भी है, जहां पर बलुई इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, वहां पर क्या होगा कि पानी वहां पर रुकता नहीं है, पानी सूख जाता है, नीचे चला जाता है, उसका वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, यानी कि पानी को वहां पर इकट्ठा करने में या पानी को, पानी का इंतजाम करने में बहुत मुश्किल आती है, मुश्किल होती है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से पानी वहां पर मिलता है, इसलिए ऊंट की एक खासियत ये होती है कि जब पानी मिलता है वो पानी पीता है, अपनी तुरंत की जरूरत को पूरा करता है और बाकी अपने यहाँ पर नीचे थैली होती है उसमें पानी स्टोर भी कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है वो, अब जरूरत पड़ने पर वहां से वो पानी अपना इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसलिए रेगिस्तान के लिए बहुत सक्सेस ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, कैमल। मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी मीन्स बंदर। एफ, APEF, लंगूर, लंगूर।
दैट मीन्स लंगूर, चिंपैंजी। ये सब हमारे उसमें चिड़ियाघर में दिख जाएंगे। जू, चिड़ियाघर क्या होता है? जू, जेड ओ ओ जू मीन्स चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। चिंपैंजी, चिंपांजी को चिंपांजी ही बोलते हैं। चिंपांजी थोड़ा सा समझदार, बंदर की एक जात होती है लेकिन थोड़ा सा समझदार होती है। कंगारू, कंगारू, कंगारू। ये अफ्रीका में ज्यादातर पाया जाता है। बाकी चिड़ियाघर में तो आपको कहीं पर भी रखा हुआ मिल सकता है। तो कंगारू क्या होता है? कंगारू जो है, इसके पास एक थैली होती है। खास बात इसकी क्या होती है? एक थैली होती है। अपने बच्चे को ये अपनी थैली में लेकर के कहीं आ जा सकता है, रखता है। जब तक छोटा है वो बहुत अपने आप में स्टेबल नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकता है, ठीक है, उसको खतरा रहता है, तब तक वो अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रखता है कंगारू। जिराफ, जिराफ। कुछ लोग पालते हैं, चूहे वगैरह भी पाले जाते हैं लोग, मोटे मोटे मूस मूस होते हैं, उसको पालते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो खेतों से भी भगाए जाते हैं। स्क्वायरल, गिलहरी। इसको दूसरा नाम एक और बोलते हैं, चिपमंग। चिपमंग, गिलहरी। ठीक है, ये थे हमारे पेट। ठीक है, और बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे हो, मुझे नहीं मालूम हो, या फिर मेरे जहन में अभी ना आया हो। अगर आप लोगों के आप लोग कुछ ऐसे जानवर भी जानते हैं जो पाले जाते हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर जो हमारा सीधा एजुकेशनल सोसाइटी का कोई डाउट सेशन वाला ग्रुप है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज। ठीक है, बाकी आपके पास और बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये गूगल होता है, आप गूगल कर लेते हैं। और बहुत सारी डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, गूगल ट्रांसलेट है, इनफोज है, बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट सबसे रिलायबल मुझे जो अभी तक लगा है, जो मैं यूज करता हूँ कभी कभी जरूरत पड़ने पर, तो वो गूगल ट्रांसलेट है। ठीक है, आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो आप गूगल ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे पेट के बाद बिल्ड एनिमल। ठीक है।